आप ट्राई करना पिछले दिन द डे प्रायर जस्ट टेल योर माइंड दैट लुक आई हैव टू वेक अप एट दिस I've टाइम done this, yeah. एंड इट वर्क्स It genuinely works. इट जेन्युइनली वर्क्स एंड देन यू वंडर अरे ये क्या सुनता है, तो जाहिर सी बात है सुनता है तभी तो होता है. I call it in my notes, मैंने एक लिखा हुआ है, उस प्रिंसिपल को मैं बोलता हूँ पिलो टॉक पावर. Yeah, beautiful. So I tell my pillow कि मुझे सुबह 8 बजे उठा देना. Correct. सुबह उठा देना. And I don't know science क्या है इसके पीछे. मैं बताती हूँ. आप बताना. I don't, but it works. Yes. उठा ही देता है मुझे. समझ नहीं आता मुझे कैसे होता है, but it works. So see, that is called priming of your clock. अब body has a clock. Our body listens to us. पहली बात तो अब जब आप देखो कि कितने सारे लोगों ने अपने cancers ठीक किए हैं. How is that possible? And they talk about absolutely it's psycho, neuro, physio, immuno, endocrinology. Psycho, neuro, physio, immuno, endocrinology. काफी लंबा चलता है, right? It starts with the mind, goes to the brain, goes to your hormone system, goes to your immunity, and then it works like an entire axis. तो पूरा जितना भी power है आपका, वो शुरुआत तो thought is the beginning for everything, right? Thought only converts into what? Mostly action. Yeah. Mostly your repeated actions becomes what? Feeling. Your character. Then slowly that becomes your destiny. तो लेकिन शुरुआत तो कहीं ना कहीं वो सोच से हुई ना, तो सोच का बहुत महत्व है. तो अगर आप वो बता देते हो, you're priming that clock that look this is how I have to wake up. Now it's your thing. और आप अगर वो just सोने से पहले करते हैं ना, जब आप वो थीटा स्टेट में होते हो, because that is a suggestible state. उस स्टेट में इसीलिए अगर आपने मान लो अगर आप मैनिफेस्टेशन की काफ़ी सारी वो देखते होंगे या वो फॉलो करते हैं ना, तो वो बोलते हैं आपने पानी का बोतल रखा हुआ है, tell that water what you want to do and then drink that water. Essentially what you are trying to do is you're giving a second line of this to the body कि अब मैंने वो ingest भी कर लिया. Does it work? I mean that's you see all the experiments which has been done in that space, right? एक तो हमारे डॉक्टर इमोटो साहब का experiment है, right? That's a very popular experiment that when you talk to the water, the chemistry of that is changing and there's something called the placebo effect. अब मुझे तो हमेशा एज अ डॉक्टर ये लगता है कि मैं माइग्रेन ठीक कर रही हूँ, लेकिन 40% साथ में प्लेसिबो वाले भी तो ठीक हो गए, तो वो कैसे हो गए? मुझे वो 60% से ज़्यादा 40% में इंटरेस्ट होता है कि सोचो बिना कोई दवाई दिए आपको शुगर पिल देने के बावजूद भी आप ठीक हो रहे हो. तो व्हाट हैपेंड? देयर वाज अ स्विच इन द ब्रेन, देयर वाज अ स्विच इन द माइंड व्हिच यू जस्ट इग्नाइटेड इट जस्ट फॉलोड. वो तो जीनी है अपना अपने आप करते रहता है, अपना काम कर दिया उसने. सो यस, इट इज़ पॉसिबल टू प्राइम द क्लॉक. So if you are able to do that pillow talk, wonderful. There's nothing like it, That's number one. Second is, you said आप मोबाइल पे देखते हो, सारे notifications देखते हो. अब इसमें क्या होता है ना कि sometimes it's pleasant, sometimes it's unpleasant because you cannot control what people are doing. Yeah. But you can control what you want to do. But I've gotten good at ignoring. Oh, very good. If you are मुझे कुछ affect नहीं करता. beautiful, क्योंकि वो आप हो. You are Raj Shamani. Like many people cannot do that, right? The moment they read that ना, उनका processing शुरू हो जाता है. अरे किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया. देखो brain जो होता है ना, उसमें 3 layers होते हैं and we can show it to the audience कि क्या होता है because अगर मेरे हिसाब से ना पूरा mathematical formula है. So ये है brain stem. So I'm breathing, my heart is beating, everything is coming from the brain stem. Then once you go up above, that is the reptilian brain, जो हम evolutionary perspective से जो हमारे अंदर अभी भी है. That is more also called the limbic brain or the emotional system. So वो क्या काम करती है? वो एक स्कैनर के जैसा काम करती है. थ्रेट स्कैनिंग, ये हो गया तो अब मैं क्या करूँगी? सेल्फ डाउट भी वही क्रिएट करता है. ओह मुझे इसको तो ठीक करना होगा. सो इट्स ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ कि मुझे फाइट करना है, मुझे फ्लाइट करना है, तो मैं भाग जाऊंगी. फियर, आई एम ऑलवेज fearful of the things. और फ्रीज, I'll be just stuck there कि अब मैं क्या करूँ. तो F सारे F यहीं पे, फाइट, फ्लाइट, फियर एंड फ्रीज वहीं पे है. अब सबसे बड़ा जो हमें दिया गया है ये है फ्रंटल कॉर्टेक्स. जो भी बंदा अपने फ्रंटल कॉर्टेक्स को, और ये हमने बखूबी पीक परफॉर्मर्स में देखा है, द पर्सन हु इज एबल टू हैक the power of that frontal cortex जो हमें as humans already दिया गया है. We have a bigger cortex. अगर आप rat का cortex देखोगे तो 7% होता है, लगभग chimpanzees का 11-12% होता है, लेकिन humans को 40% दिया गया है. तो कोई ना कोई logic से दिया है because that is where emotional control, तो मैं उसको सारे C's बताती हूँ कि emotional control हो गया आपका control, आपका commitment, आपके choices, आपका command, सारा कुछ वहीं पे है. What are you going to do? How do you connect the past and the future? How do you regulate yourself? अगर threat आ गया तो how do you convert a reaction into a response? तो आपने क्या है over the time ये बना लिया है. That's why you can ignore. But most people cannot. Studies क्या बोलती है? 80% of the time we are only being controlled by the limbic system.
Amygdala is a small little structure, almond shape, जो अंदर रहता है. उसका काम ही ये है, वॉचमैन, अरे अंदर नहीं जा सकते हो तुम, ये नहीं कर सकते हो, अरे ये क्या हो गया, suddenly 13 seconds it takes to convert into rage, anger. तो उस 13 seconds को अगर आपने थोड़ा सा काम वो कर लिया और 13 से इवन गिनती वो कर ली ना, उसका पावर खत्म हो गया. वो ना ऐसे वो बबल की तरह निकल गया सारा आउट. But if most people cannot do that, 80% of the times people still live in that limbic loop, rumination. Past का सोच रहे हैं, past की कैसेट चल ही रही है. All the things run past by and you can't leave that thought. अगर आप वो थॉट नहीं पकड़ पाते हो तो आपका रैंडम रैम तो पूरा बिजी है. 90% ऑफ योर रैम इज ऑक्यूपाइड इन समथिंग विच इज नॉट सर्विंग यू. तो आप आगे का कैसे सोचोगे? सो दैट लिम्बिक लूप हैज टू बी ब्रोकन. सो यू आर एबल टू डू इट बिकॉज यू कैन इग्नोर, एंड दैट इज द रीजन वाई यू कैन, चलो ये मैसेज इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं है, मेरे लिए जितना पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, समथिंग विच इज गोइंग टू हेल्प मी, यू टेक दैट. And then you go on to your treadmill, which is your physical exercise, which should be the case. And then the gym. And the gym. So which is strength building and your, और exercise के भी सारे components होने चाहिए. Cross lateral training होना ही होना चाहिए. Wherever you are crossing your this, because it is very important for the brain का growth के लिए. Strength होना चाहिए. Coordination. अब coordination की भी हम जब exercises कराते हैं बड़ा interesting होता है. एक पैर पे आप खड़े रह जाओ. आप मान लो कि 30-40 seconds खड़े रहते हो. You command your brain कि भाई अब मुझे 2 मिनट खड़ा रहना है, वो हो जाएगा. So coordination, also cerebellum also is essentially connected to your command center. सारे connected तो अपना frontal lobe से ही है. So switch तो वहीं पे है सबकी, So that is great. So your strength is building, coordination भी हो रहा है, आपका balance की exercises भी हो रही है, endurance भी हो रहा है आपके, और muscle is everything. There's a very nice study which is published 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पहले ही publish हुआ है कि हैंड ग्रिप जो होती है उसका कनेक्शन डायरेक्टली आपके न्यूरोनल स्ट्रेंथ के साथ जुड़ा है, आपकी मेमोरी के साथ जुड़ा है. If you don't have a good grip, then likelihood of you getting dementia is more. सोचो आप. Yeah. Dementia you is, age faster if you or absolutely, grip is not there, absolutely. Yeah. But you said prefrontal cortex. जी बिल्कुल. Right. And आपने बोला कि मैक्सिमम लोगों का वो स्ट्रांग नहीं होता. Yes. इसकी वजह से वो दुनिया भर की सारी चीज़ें खुद को अफेक्ट करने देते हैं. बिल्कुल. एंड इसकी वजह से लाइफ में वो अचीवर्स नहीं बन पाते हैं, कुछ सक्सेसफुल नहीं बन पाते. राइट. मे बी उनमें बहुत पोटेंशियल है बट ये पार्ट स्ट्रांग नहीं, इसलिए वो अटके रह गए कहीं पे. बिल्कुल. कैसे कोई स्ट्रांग कर सकता है अपना ब्रेन? बिल्कुल. सो पहले तो बात होती है, सब ऐसा बोलते हैं अरे राज शमानी के पास तो शायद 24 घंटे से ज़्यादा है तभी वो इतना सारा काम करता है या डॉक्टर श्वेता के पास इतना टाइम है. टाइम हमें सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया है. चलो रिसोर्सेज थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रिसोर्स है, अच्छा इसमें क्या किसी को ऊपर नीचे दिया है? एवरीबडी हैज़ द सेम वे, द ब्रेन, द फिजियोलॉजी, सारा कुछ अच्छा दे रखा है. नाउ अ लिटिल बिट गोज बैक टू योर चाइल्डहुड ऑल्सो, कि 0 to 5 years जो होता है ना, वो बहुत एक क्रिटिकल विंडो, क्रिटिकल डेवलपमेंट पीरियड होता है ब्रेन के लिए, क्योंकि द स्पीड ऑफ ग्रोथ ऑफ न्यूरॉन्स इज एस्ट्रोनॉमिकल. 700 साइनेप्टिक कनेक्शंस पर सेकंड बन रहे होते हैं 0 to 3 में. और अगर हम वहाँ का उसका लर्निंग स्टडी करें ना, तो जो पीक लर्निंग होती है, जो सेंसरी जो भी मैं प्रोसेस कर सकूँ, मैं देख भी रही हूँ, मैं सुन भी रही हूँ, वो होता है 3 साल पे. और हम समझते हैं कि अरे बच्चा समझ नहीं रहा है, बच्चे को कुछ पता नहीं चल रहा है. तो जो ये बीज होते हैं ना प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स के डेवलपमेंट के, वो वहीं से शुरू होते हैं. 0 to 3 में शुरू हो जाते हैं. द सीड ऑफ इट स्टार्ट्स देयर. सो जो बच्चे वाला होता है वो पहले हमारा, अब काफ़ी लोग बोलेंगे मेरे बच्चा तो निकल गया या मेरे तो बस छूट गई, अब काम खत्म हो गया. ऐसा नहीं है. देन देयर इज अनदर पीरियड विच कम्स इन बिटवीन द एज ऑफ 13 to 20. वहाँ पे भी आप उसको काफ़ी इन्फ्लुएंस कर सकते हो. अब इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि वोटर्स की जो एज होती है वो आजकल दे आर नेगोशिएटिंग दैट इट शुड नॉट बी 18 बिकॉज द फ्रंटल कॉर्टेक्स इज नॉट फुली डेवलप्ड देन. तो आप चॉइस अच्छे से नहीं कर पाते हो. तो उस पॉइंट पे आपने अगर हैबिट बिल्डिंग कर लिया, यू स्टार्टेड टू वर्क ऑन योर सेल्फ, तब आप काफ़ी ज़्यादा बाहर एक्सटर्नली यू आर वर्किंग बट यू आर नॉट वर्किंग इंटरनली. द मोमेंट यू स्टार्ट टू वर्क एट दैट एज, जो भी इस एज में सुन रहे हैं, इफ़ यू स्टार्ट बिल्डिंग दीज काइंड ऑफ प्रैक्टिसेस, तो आपका फ्रंटल कॉर्टेक्स शार्प रहता है. अब मान लो 13 से 18 में अगर आप वो भी एज गया एंड नाउ यू आर 30, बिटवीन 30 and 50. I'm 28. Perfect. And मेरी ऑडियंस मैक्सिमम
इसी एज ग्रुप में है। तो अब ये बहुत इंपॉर्टेंट आ गया। 35 ये सबसे इंपॉर्टेंट है। टेल मी। 25 to 40 में ब्रैकेट कर लेता हूं। चलो 25 to 40 में अगर मान लो कि ये दोनों बस छूट गई थी, हम क्या अब गए, हम नहीं कर सकते। अब हमें शुरुआत से शुरू करना है, तो भी कोई देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट बिकॉज ऑफ द न्यूरोप्लास्टिसिटी। द डे यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द ब्रेन, प्लास्टिसिटी एक इतनी सुंदर सी गिफ्ट है ना भगवान की। आप ऐसा नहीं समझो कि ओ मेरा तो ये हार्ड वायर्ड ब्रेन है, मेरा ऐसे ही जीन्स है, सब कुछ ब्लेम कर दो ना, वो तो मेरे जीन खराब थे, उसने तो मेरा अभी मेरे माँ बाप ने ठीक मुझे रेज नहीं किया, तो सब कुछ इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा सब उन्होंने किया है, सब उन्होंने किया है। हाँ, तो अब मैं तो कुछ नहीं करूंगा, मैं बस सबके ऊपर गुस्सा करूंगा और फाइट फ्लाइट फियर फ्रीज में ही मेरी जिंदगी कट जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। द डे यू डिसाइड, द डे यू कमिट दैट यू वांट टू बिल्ड दिस फ्रंटल कॉर्टेक्स स्ट्रेंथ, दैट इज पॉसिबल। सबसे पहला स्टेज इज अवेयरनेस। Are you aware about your limbic and frontal cortex? तो ये दोनों सीसॉ के जैसे काम करता है। अगर मेरा लिम्बिक फायर हर चीज़ पे मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे थ्रेट लगता है, आई कैन नॉट कंट्रोल माई इमोशंस, आई फॉल इन लव, इसीलिए फॉल इन लव बोलते हैं ना, आई फॉल इन लव बिकॉज दैट इज वॉट योर लिम्बिक सिस्टम इज डूइंग, राइट? एंड इफ यू आर कॉन्स्टेंटली इन दैट लिम्बिक, योर फ्रंटल कॉर्टेक्स इज नॉट वर्किंग, बट द मोमेंट योर फ्रंटल कॉर्टेक्स स्टार्ट्स टू वर्क, योर लिम्बिक गोज डाउन। सो बी अवेयर, एज यू राइटली मेंशन, मेरे आगे से गाड़ी जाती है तो मेरा रिएक्शन क्या है? If somebody did something wrong to me, how am I taking it? मेरे पूरे दिनचर्या में, right from morning, so do something called the day audit. Audit your emotions, audit your actions, audit your responses, audit your relationships, audit your work, your profession. जब आप अवेयरनेस के स्टेज में आ जाते हो, तब आपको समझता है कि हाँ भाई, मैं तो बहुत ज़्यादा लिम्बिक में हूँ, या मैं तो बहुत ज़्यादा ये यूज़ करता हूँ, तो वो पहला स्टेप है। अब उसके बाद का सेकंड स्टेप क्या है? स्टार्ट डूइंग एक्टिविटीज़ विच इज़ मेकिंग इट स्ट्रॉन्ग। उसमें क्या आता है? सबसे पहला जो वेरी फर्स्ट थिंग विच कम्स इज ये चारों जो वेव मैंने बताया ना, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा, उन सबको प्रैक्टिस कराना पड़ेगा पूरे दिन में। राज, अगर आप किसी भी इस 25 to 40 को पूछ लो, और ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, क्या दिन में कितना टाइम आप आँख बंद करके बैठते हो? पीपल्स आंसर इज शॉकिंग। कोई बोलता है कभी नहीं, कोई बोलता है मे बी अंडर अ मिनट, कोई बोलता है शायद मैं एक आध बार प्रे करने जाऊं तभी। सो यू आर नॉट बिल्डिंग योर अल्फा। इफ आई वांट टू बिल्ड माय बाइसेप्स, आई डोंट लुक एट द बाइसेप्स, I have to work for it. Same thing, if you want to work for a calm response, a balanced response, a frontal cortex which is allowing your emotions to be under control, you want a good alpha. You want a very good theta, because theta आपको creativity भी दे रहा है, vision भी दे रहा है, future भी दे रहा है। तो अब theta के लिए क्या करना है? आँख बंद से काम नहीं चलेगा, आपको और डीपर जाना है। दैट इज़ मेडिटेशन। मान लो आपको मेडिटेशन इज़ अ वेरी बिग वर्ड एंड हुला लगता है, तो क्या आप ऐसा म्यूज़िक सुनते हो जो थीटा बना सकता है? क्या आप ऐसा लोगों के साथ रहते हो? बिकॉज यू इम्बाइब द क्वालिटीज़ ऑफ द पीपल दैट यू लिव विथ, राइट? जिसको हम मिरर न्यूरॉन्स बोलते हैं। अगर आज मैं यहाँ पे स्टूडियो में एकदम ही ऐसे ऐसे आ जाऊँ, तो आई कैन ट्रांसफर दैट। इट्स इमोशंस आर कंटेजियस। सो आर यू लिविंग इन दैट एनवायरमेंट? अब आप एकदम से एंगर के एनवायरमेंट रहते हो और बोलते हो नहीं मुझे तो जी थीटा बनाना है, कैसे होगा? Not possible. So then you have to change your environment. So you have to change your environment, you have to change your daily habits. अब मान लो आप अल्कोहल लेते हो, स्मोकिंग करते हो, निकोटीन का भी ये है, कैफीन भी है, और फिर आप बोलते हो नहीं मुझे तो अल्फा थीटा जी चाहिए। अब आप इतने बीटा से अल्फा थीटा कैसे बना पाओगे? So how important is addiction to you? You know, you have to let go of all these things. कुछ तो छोड़ना पड़ेगा, you know, वो अगर हम बर्फ़ हाथ में लेते हैं तो आफ्टर अ टाइम जलन वगैरह होती है, और अगर मान लो छोटे बच्चे ने पकड़ लिया तो मम्मी बोलेगी अरे उसको छोड़ दो ना, वो वाई आर यू होल्डिंग इट? तो हम उसको होल्ड भी करना चाह रहे हैं और फिर कंप्लेन करते रहते हैं कि भाई मेरा ब्रेन तो बनता नहीं है। कैसे बनेगा? सो यू सेड अल्फा, बीटा, थीटा, गामा एंड डेल्टा। ठीक है, डेल्टा अच्छी स्लीप से आ जाएगा। यस, दैट इज वन। यस। अल्फा के लिए अगर मुझे अपना ब्रेन अल्फा मुझे बहुत ट्रेन करना है, मेरे ब्रेन की पावर बढ़ानी है, तो मुझे रोज कितनी देर बैठना चाहिए खुद के साथ? 5 मिनट कम से कम, 5 minutes आइज क्लोज्ड। इज इट लाइक जितना ज़्यादा बैठते उतना बेटर? एब्सोल्युटली। टेल मी एन आइडियल, अगर आज मुझे करना हो, व्हाट इज द आइडियल? सो या तो आप ग्राउंडिंग चले जाओ, वो सबसे बेस्ट दूसरा तरीका है टू बिल्ड द अल्फा। व्हाट इज ग्राउंडिंग? ग्राउंडिंग इज जस्ट वॉकिंग barefoot on the grass, walking barefoot on the beach, because the moment you touch the earth, ऑटोमेटिक काम हो जाता है। You're saying अल्फा बिल्ड करने के 2 तरीके हैं। यस। फर्स्ट इज मैं घर में बैठ जाऊँ कहीं पे भी, और मैं आंख बंद करके क्या करूँ? कुछ नहीं करना है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। नथिंग, लेट द थॉट्स फ्लो। आप बस खाली आंख बंद करके बैठे हो, यू आर सिटिंग,
एंड यू आर जस्ट वॉचिंग योर थॉट्स फ्लो, जो भी हो रहा है होने दो। सो अल्फा ट्रेन करने के लिए बस बैठ जाओ, सोचो, और अगर उसमें मैं कोई प्रॉब्लम के बारे में सोच रहा हूँ, कोई बात नहीं, इट्स फाइन, दैट्स फाइन, टोटली फाइन। सो ये हो गया अल्फा। यस। सेकंड वे था कि ग्राउंड पे नंगे पैर चलना, बिल्कुल, yes, that without also thinking about anything. Can I listen something while walking? yes, though there is something specific musics which are being created, तो ये music as a frequency is also a therapy. So जब आप कोई frequency देते हो तो आप brain की frequency को change करते हो। Give तो me an example of music. So I'll tell you, Limitless Brain Lab ने माओना टीवी जर्मनी के साथ collaborate करके हमने सारे music के pieces lab tested बनाए हैं। For example, मैं relax नहीं हो पा रही हूँ, कितना भी मैं करूँ relax, और जब जितनी बार आप brain को बोलोगे ना relax हो जा, उल्टा ही करेगा because you've never done that ना, तो brain is not primed for it। तो आप अल्फा का बाइनोरल बीट्स होता है। सो अल्फा की फ्रीक्वेंसी का बाइनोरल, विच मीन्स मैं एक कान में अलग फ्रीक्वेंसी दे रही हूँ, दूसरी कान में अलग दे रही हूँ, वो कैंसल होके मुझे अल्फा बना के देता है। सो दैट यू कैन यूज इट 5 मिनट। जैसे हम पिल खाते हैं ना, हेडेक हो गया, पिल खा ली, तो ये 5 मिनट का पिल सुन लो, it is a frequency and it will help you to get into the groove. There are so many companies. राज, मैं कैम्ब्रिज में MBA किया मैंने, तो हम लोग काफ़ी सारे उस पे जाते थे। We used to go on field visits. So I've been to all these who's who कंपनी के कैंपसेस पे। तो एक कंपनी में मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, उन्होंने एक कोने पे ना बहुत एक छोटे से उसमें एक हेडफोन और एक बड़ा सा स्क्रीन बनाया हुआ है, एंड यू पिक इट अप और वहाँ पे लिखा है स्ट्रेस, रिजुवेनेशन, फोकस। तो मैंने कहा ये तो हमारा ब्रेन का काम चल रहा है यहाँ पे। सो यू जस्ट पिक इट अप, 5 minutes you spend there, because when you watch a frequency and when you tune in the audio, the brain waves frequency can be modulated. तो हम इसको न्यूरो मॉड्यूलेशन कहते हैं। सो बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी न्यूरो मॉड्यूलेशन के हैक्स कर रही है, ऑलरेडी दिस इज हैपनिंग। सो इट इज़ वेरी ईजी। ब्रेन के लिए इतना कोई नामुमकिन है ही नहीं है। इनफैक्ट बच्चों को अभी हम वी आर डूइंग द ट्रायल्स ऑन लिमिटलेस ब्रेन लैब, ऑटिज्म हो गया, ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम हो गए, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर वाले बच्चे हो गए, आप उनको लाइट एंड साउंड के साथ उनके ब्रेन को मॉड्यूलेट कर सकते हो। सो इट इज ऑल देयर, यू नो, दीज आर हैक्स, very simple hacks. Can I listen to a podcast while? Yes, now depends on what